थैंक यू सो मच राज भाई। आई जस्ट वांट टू आस्क, आज बहुत लोग ने बहुत कुछ बातें की हैं, हाउ वी ग्रो, हाउ वी डू बेटर थिंग्स इन लाइफ। यार कभी किसी ने ये बात नहीं की जब नीचे गिरते हैं हाउ डू यू होल्ड योर सेल्फ, क्योंकि व्हेन देयर इज डार्कनेस यू हैव टू ब्रिंग लाइट फॉर योर सेल्फ। आई डोंट थिंक लाइट आती है, हमको खुद को लानी पड़ती है लाइट। How can someone just grow from the darkness? Because I think no one has spoken about that. You are the perfect person to speak about that, bro. I'll tell you very basic answer. मतलब मैं इतना philosophical नहीं हूँ तो मैं इतने better answers नहीं दे पाऊँगा. Probably somebody would be able to give you proper curated framework कि क्या करना चाहिए जब गिर जाओ तो. मुझे ऐसा लगता है मैं खुद से बस question पूछता हूँ and fail हो गया and मेरे से नहीं हो पा रहा and मैं सही बंदा नहीं उस टाइम पे and what पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ अभी मैं and जॉब मिल जाएगी, जॉब नहीं मिलेगी एंड कुछ फ्रीलांस कर लूँगा एंड सो आई ऑलवेज जस्ट थिंक अबाउट और क्या भाई, क्या ही हो जाएगा, मतलब क्या है. सो टू मी आई डोंट सी एनीथिंग एज फेलियर. मैं बहुत इरैशनली ऑप्टिमिस्ट बंदा हूँ. मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत चीज़ें अचीव करने के लिए और मैं सब अचीव करने वाला हूँ और मुझे लगता है मैं ऐसे ही ऊपर से आया हूँ, मेरी मॉम ने मुझे बोल दिया तो मैं कर लूँगा. सो टू मी दैट्स वेरी जस्ट इज लाइक अ क्रेजी बिलीफ. मुझे लगता है बस मैं ही हूँ और मैं कर लूँगा एक दिन. तो अगर मैं गिरता भी हूँ तो आई फील लाइक एंड वॉट, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कभी और. इनफैक्ट आई टेल यू वेरी स्टूपिड थिंग. आई फील द फेज दैट आई एम इन राइट नाउ, one day when I look back to this phase, I'll call it struggling phase. Like this is the struggle phase because we are going to be so big than this. Then ये लगेगा कि भाई इस टाइम तो struggle कर रहे थे. And that is what I feel, that is my philosophy. तो जब गिरते हैं तो and what? I'm glad. Thank you so much, Raj bhai. Thank you so much. Good evening, sir. My name is Viven Gupta and I want to ask you two questions. Wow. First question is, what is your biggest weakness and strength? Second is, define yourself in one word. Define? Yourself in one word. भाई HR कौन लाया इधर? Tell me please. By the way, commendable. Like, bro, like, can we just have a clap for him? Like, this, look at him. Look at his age. It's crazy. Vivek, thanks for asking me such insightful, deep questions, which I can never answer, but I'll try to. What's my biggest strength and biggest weakness? My biggest strength is, I think I'm people obsessed. That is my strength. And you can see that in my work. You can see that in my podcast. You can see that in every startup that I do. I think my biggest strength is I want to give value to everyone who's listening to me. And I want to bring some perspective जो कभी शायद लोगों ने मुझसे पहले कभी सुना नहीं. So I'm very, very, very people obsessed. I want to make sure that everyone who's giving me even 1 minute is either getting to know a newer side of me or getting to learn something new, or is actually thinking that ki yaar, he's made me feel better about myself. So that is my biggest strength. I am people first. Every time I go up on the stage or when I do a podcast, I never think about how I am going to perform or what I'm going to do on stage. I always think about what are they going to get. Are they getting the real me? Are they getting the real value? Are they getting education? Whatever. So I think that's my biggest strength, that I'm people first. I don't know if it's strength for everybody, For me, it really worked in my career. My biggest weakness is I am delusional. I live in my own delulu. Like it's my own world. और मुझे लगता है कि जो मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें हैं वही सब सही है और वो बहुत बढ़िया है. So I think that delusion sometimes doesn't help you. Sometimes you have to be a little practical. Sometimes you have to be a little realistic. Sometimes you have to take calculated risk. You have to be a little analytical about your life. I think I'm not that. मैं बिल्कुल भी calculated नहीं हूँ. मैं बिल्कुल risk averse नहीं हूँ. I function out of optimism, and I think the worst advice which people give is be practical. I think that's the worst advice that anybody can give you. So to me, that is me, and I think that is a weakness because in some cases, I've tried to be extremely irrationally optimist, and it has not worked for me. So that I can say is one of my biggest weaknesses. If I have to define myself in one word, I would say relentless.
And the reason to that is, I say this a lot in my organization to my people. The day we are not relentless, I feel we are restless, right? हमें relentless, if you look at our podcast or if you look at our startup, you look at, we are not the most knowledgeable ones. We are not the most insightful one. We are not the most good looking one. We are not the most skilled or talented one. We don't have the biggest money backing us. We don't have biggest sponsors. We don't have the biggest setup or the production unit. We don't have anything which is number one. The only quality that we have is we outwork everybody. तुम कुछ भी कर लो, हम तुमसे ज़्यादा काम कर लेंगे. तुम ट्राई कर लो मेरे गेम में मुझे बीट करने का, मैं तुम्हें वापस बीट कर दूंगा. तुम like open challenge to everybody. You try to do, let's say, think about podcast because most people know me through podcast. Let's say podcast, you try to do it. You do one step better than me. My whole team is going to go underground for 6 months. We'll come back and we'll beat you. You do 2 steps better than me, I'll do 20 steps better than you. We just outwork everybody. So relentless is the word which I think, because I think हम काम बहुत ज़्यादा करते हैं. हम दिन रात बस काम करते हैं, हमें और कुछ आता ही नहीं. I hope that answers your question. Okay, can we go at the back? The guy in yellow t-shirt. हाय सर. Hi. मैं सागर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सागर परफ्यूम. अभी मैंने सबको इंट्रो दिया था, आपको भी सर मेरे पास सेकंड टाइम माइक हुआ है. मैं एकदम छोटे से बिजनेस कर रहा हूँ अभी. 4-5 करोड़ का मेरा अभी ईयरली टर्नओवर है. तो मेरा क्वेश्चन है कि पहले तो कितना टर्नओवर है? 4-5 करोड़ का छोटा बिजनेस है ये. सर अभी तो मैं वेल सेटेड भी हूँ, बट वो मतलब देखते हैं ना कि यार सर किसी को कि भाई 50 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ बना दिया, तो वो ड्रीम मतलब मेरे माइंड में है. अभी मैं सच्ची में अच्छा बिजनेस है, वेल सेटेड हूँ, प्रॉफिटेबल भी हूँ, खुद का घर का फैक्ट्री भी सेटअप है, घर का अच्छा घर भी लास्ट ईयर ले लिया, गाड़ी भी है. सूरत ने काफ़ी सारा दिया है, साइकिल लेने का भी पैसा नहीं था. तो आई मतलब रियली, बट अभी जो शार्क टैंक देखने के बाद जो ड्रीम खुले हैं 2-3 साल से, तो वो मैं बता रहा हूँ. तो सबसे पहले तो सर आपके शो में आने के लिए सर हमारे जैसे छोटे बिजनेसमैन के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी हो तो बताओ. और स्पेशली मेरे लिए ये सारे लोगों का क्वेश्चन है, मेरा भी है, स्पेशली मेरे लिए भी कि मैं आपके पास आऊँ और कुछ क्वेश्चन आंसर आप करें तो. और दूसरा ये है कि मेरी एक प्रोडक्ट मतलब मेरी प्रोडक्ट को मैं हाईलाइट करूँ और कैसे बड़ा बनाऊँ इंडिया में और ग्लोबली भी, स्टेप बाय स्टेप. तो उसके लिए कुछ टिप्स दे दीजिए. और थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरे को चांस दिया. और लगता है आज मेरा येलो टी शर्ट लकी है, और ये स्पेशली मेरी वाइफ ने सजेशन किया था. You know how did you sound to me? मुझे ऐसा लगा कि किसी ने वेलकम देखिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है. He sounded like that, right? भाई सब तो है. But congratulations on the things you're doing. I think one of the best advices which my mentor gave me, it's unrelated to your question, but I'll tell you to everyone. मेरे mentor ने मुझे एक बात बोली थी, कभी भी लाइफ में ना खुद को इंट्रोड्यूस ऐसे मत करना कि मेरा एक छोटा बिजनेस है या मैं छोटा बिजनेसमैन. कभी मत करना. हमेशा बोलना कि मैं ये काम करता हूँ, छोटा या बड़ा तुम खुद बना देते हो सामने वाले के लिए, मे बी वो बहुत बड़ा हो. यू शुड नेवर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विथ मेरा एक छोटा बिजनेस है, अभी तो मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ. उसे क्या पता कि तेरे लिए ठीक ठाक क्या है और बड़ा क्या है और छोटा क्या है. यू शुड नेवर डू दैट. लाइक दैट्स एडवाइस विच माई मेंटोर गेव मी एंड आई थिंक इट्स रियली गुड. सो ऑलवेज स्टार्ट विथ मैं ये करता हूँ, छोटा है बड़ा है सामने वाला देख लेगा यार. ओके. सेकेंड इज हाउ डू यू कम ऑन माई पॉडकास्ट. वाओ. I'll tell you. So usually 2 ways होते हैं. First is मैं जिसके बिजनेस के बारे में इंटरेस्टेड होता हूँ जानने के लिए, या कोई इंडस्ट्री जो मुझे लगता है कि यार मैंने कवर नहीं करी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं उनको खुद रीच आउट करता हूँ. कोई भी हो मैं उनको खुद रीच आउट करता हूँ, खुद ढूंढता हूँ. डजेंट मैटर. मेरे पॉडकास्ट पे ऐसे लोग आ चुके हैं जिनका 2-3 करोड़ टर्नओवर है, और ऐसे लोग आ चुके हैं जिनका 20,000-40,000 करोड़ टर्नओवर भी है. राइट. तो बहुत लोग हैं, बहुत रेंज है, बट जिसका इंटरेस्ट मुझे आता है तो दैट्स व्हाई आई डू इट. मेरी पूरी टीम भी ऐसे ही करती है. सो दैट इज़ फर्स्ट. सेकेंड वे इज बहुत लोग ना हमें ईमेल्स डालते रहते हैं कि हम आना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं.
सो जब भी वो ईमेल डालते हैं मेरी पूरी टीम वेट करती है. हमारा एक लेयर बना हुआ है जिसमें हम 10 क्वेश्चंस पूछते हैं. What is a business about? What is unique about business? What can you teach to our audience that nobody has taught to our audience ever before? What makes you stand out? Why specifically you? What specific validations you have earned in life जिसकी वजह से जो आप बोल रहे हैं मैं उस पर बिलीव करूं? ऐसे 10 क्वेश्चंस हैं जो पूरी टीम जिसके ऊपर टेस्ट करती है एंड उसके बाद फिर वो स्पेसिफिक लोगों को चूज करती है. सो दीज आर द 2 ways how we do it. There have been there have been instances जहाँ पे 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ बिजनेसेस जो शायद इंडिया के टॉप 10 ग्लोबल हाउसेस में लाइक इंडिया के बिजनेसेस होंगे बहुत बड़े बड़े, हमने उन्हें भी रिजेक्ट किया है. एंड द रीज़न की रिजेक्ट क्योंकि वो हमें ये नहीं बता पाए कि वो हमारी ऑडियंस को सिखाएंगे क्या. सो अगर वो 10 क्वेश्चन नहीं होते ना, वी रिजेक्ट इट. वी डोंट केयर हु यू आर, व्हाट डू यू डू. फॉर टू मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कैन वी टीच समथिंग टू आवर ऑडियंस. सो आई थिंक आई होप दैट आंसर्ड बोथ ऑफ योर क्वेश्चन. Hello, sir. Here from You know, I honestly, I'll tell you, I can't name, but we got an opportunity for India के top 5 billionaires में से एक की. Okay? Can't name, you guys can think. पांचों में 5 ही हैं तो सोच लो, बहुत बड़ा नाम है. 5 में से, and they reached out to us. And उन्होंने बोला कि हम podcast करना चाहते हैं. And the top guy directly called me. Like, Raj, I love your work. Come over, we want to have this podcast with you. एंड मैंने बोला ठीक है सर, आपकी टीम मेरी टीम से कनेक्ट करा दो, विल वर्क ऑन इट. मेरी टीम ने उनसे पूछा कि आप जब आओगे आप क्या सिखा सकते हो. उन्होंने बोला इनसे क्या सीखोगे यार, इंस्पिरेशन है ये तो. मतलब ओके इंस्पिरेशन है, बट आपकी जर्नी के बारे में कैन यू टेल अस समथिंग जो शायद आज तक किसी को नहीं पता है. दे लाइक नहीं 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 ये सब तो नहीं पता, जो होगा फ्री फ्लो में हो जाएगा. मैं लाइक ओके. लाइक फ्री फ्लो में क्या होगा. तो उन्होंने बोला कि हम एक टेलीप्रॉम्प्टर लगाएंगे सामने, आप हमें पहले से क्वेश्चंस दे दो, उन क्वेश्चंस के वो आंसर्स रटे हुए होंगे और बीच में जब कट बोलना होगा हम कट कर देंगे क्योंकि उनको अपना टाइम चाहिए, वो एग्जैक्ट वैसे ही बोल सकते हैं तो शेयर वैल्यू अप एंड डाउन हो सकती है. एंड वी सेड नो. मुझे पता था कि वो मैं पॉडकास्ट डालता तो मिनिमम 10 मिलियन व्यूज़ थे एंड मेरा बहुत नाम होता था कि भाई तू किसको लेके आ गया. बट वी सेड नो बिकॉज वी डोंट वॉन्ट एनी वन टू कम ऑन आवर पॉडकास्ट एंड टॉक समथिंग जो उनकी PR ने उनको सिखा दिया है, या वो ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं पता है जो उनके बारे में हमें नहीं पता है, या वो कुछ मेरी ऑडियंस को सिखा ही नहीं पाए. सो आई थिंक वी रिस्पेक्ट दैट अ लॉट एंड दैट्स व्हाई आवर पॉडकास्ट चूजिंग सिलेक्शन इज वेरी वेरी. Hello, sir. Here. हाय. I'm Nidhi from 4Plus. And first of all, great to have you here. Thank you. And my question is, being a content creator, you constantly have to choose a niche for your audience. And now being in a media agency, we also face this issue. Like we have lab-grown diamonds. We have 3 different clients with lab-grown diamonds. And how do we choose same niche for 3 different clients with the same industry? Wow. Wow. I would never work with 3 different clients together doing the same niche. Let me think. Interesting question. You know, the way to do it, probably what I do is, the way I choose niche is, I think my life is my niche. So whatever I am going through, I ask myself 5 questions and based on that I create content. And this is what every business owner should also do. So you should ask these 5 questions to all 3 clients and उनके तीनों के अलग अलग आंसर्स होंगे और उनकी वो niche बना देना. Okay, so let me tell you. So first is, when I started creating content, this is what I asked. It's like, who am I? मैं एक 20-year-old लड़का हूँ. कहाँ से आता हूँ? Tier 2 सिटी से. क्या मुझे करना है? Like what are my dreams? मुझे एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है. मेरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि मैं बॉम्बे जाऊँगा तो मैं किसी को नहीं जानता, सो प्रॉब्ली नेटवर्किंग इज़ माई चैलेंज. एंड देन फिफ्थ इज कि मुझे अभी एट दिस पॉइंट क्या रोक रही है टू बिकम दैट बिग. लाइक व्हाट इज माई पेन पॉइंट राइट नाउ. सो माई पेन पॉइंट वाज कि मेरे में कोई स्किल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जो मैं सीख सकता हूँ जिसकी वजह से मुझे पता हो कि बड़ा बिजनेस बनता कैसे. सो ऑल माई कॉन्टेंट वॉज फॉर कि एक 20 साल का इंसान छोटे शहर से बड़े शहर में जाके एक स्टार्टअप जिसको बनाना है वो कैसे नई चीज़ें सीख सकता है जिसकी वजह से उसका स्टार्टअप बड़ा हो. दैट बिकेम माई नीश एंड दैट वाज एग्जैक्टली वाई मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग मी इन द बिगिनिंग, क्योंकि मैं यही करता था, पॉडकास्ट बुला बुला के लोगों से ये चीज़ें पूछता था. सो दैट एग्जैक्टली व्हाट यू कैन डू. दीज 5 क्वेश्चंस यू कैन राइट डाउन एंड फॉर क्लाइंट्स दिस विल बी लाइक कि व्हाट डू वी सेल,
कौन हमारा कस्टमर है, उस कस्टमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम ज़्यादा कस्टमर्स तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, और हम में ऐसा क्या है, हम कहाँ से आते हैं जिसकी वजह से लोग हमें खरीदने चाहिए. पांचों अलग अलग चीज़ें बताएंगे. अगर पांचों क्वेश्चन सेम है तीनों के, आई थिंक फिर शायद अलग अलग कर देना चाहिए क्लाइंट. Because I wouldn't work with someone who has like exact same, I won't be able to actually give them exact value. So अगर ये answers अलग है तो then you can work. That's how I create my niche. Hello. Hi, Raj. Hi. Good evening. So, when I was thinking to name my brand, name my company, then I was thinking that it has to be very catchy, it has to be very unique, which is why I named it Event Pitara. Now I'm also known as Pitara Girl. Nice. So, what was the thought behind the name figuring out? Because I was figuring out in life. What exactly? I told you, health, wealth, relationships. Really? Just because you were figuring out, you had kept it the... Exactly. That was the reason. I was like, मैं लाइफ में फिगर आउट कर रहा हूँ और मेरे से कितने होंगे जिनको फिगर आउट करना है, फिगरिंग आउट. What are we doing? Figuring out, right? And I say this in my organization. There's a line. The line is, we want to become world number one. Are we the most talented? No. Do we know all the things that we can, that requires to become world number one? No. Do we have the right team to be there? No. Do we have the right language to be there? No. Maybe not, we don't know. But till that happens, we're gonna keep figuring out. So that is why we kept figuring out. Great thought, yeah. I usually, मेरा कोई भी, अगर तुम किसी भी स्टार्टअप का या कोई भी ब्रांड देखोगे, ज़्यादा दिमाग लगा में नाम नहीं था. मुझे लगता है नाम से कुछ नहीं होता, काम से होता है. काम अच्छा होता, नाम अपने आप बन जाता है. सो मैं दिमाग लगाता नाम पे. ऑल माई नेम्स लाइक हाउस ऑफ एक्स वॉज जस्ट लाइक कि एक्स मतलब इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का हाउस है, हम तुम्हें इन्फिनाइट पोटेंशियल दे देंगे. कुछ जो उस टाइम पे आ गया कर दिया. लाइक दैट इज़ हाउ वी कीप इट. ब्लैंको इज़ अ परफ्यूम नेम. वो जो किंग है मेरा पार्टनर है, उसका गाना था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. उस टाइम सुन रहा था, भाई ये रख ले, वो रख लेते हैं, ठीक है. सो वी आर वेरी वेरी रैंडम विद कीपिंग नेम्स बिकॉज आई फील नेम इज, मतलब मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता. एंड द फर्स्ट इज दिस. सेकेंड मैं बहुत देखता हूँ कि उसका डोमेन नेम मिल जाना चाहिए. दैट इज एन इंस्टाग्राम आईडी मिल जाना चाहिए. सो दीज आर द टू थिंग्स आई सी. आई डोंट थिंक ऑफ नेम्स. Hello. Hi, here, Raj here. Hi. This is Ashna. Firstly, welcome to Surat. I really hope you enjoy your stay here. So, I'm a budding new age entrepreneur, like a lot of people present here. I have my own brand in the home decor niche, and I want to ask you point blank कि 0 to 1 जाने का फंडा क्या है? What is that one thing that every entrepreneur should focus on, should not miss out on at all in the budding stage, in the founding stage, कि वो process थोड़ा सा fast हो जाए, or something that you have faced, a failure that you have realized कि यार ये मिस्टेक है, इसको अवॉइड करो कुछ भी करके. सो पॉइंट ब्लैंक एकदम. First advice is follow Raj Shamani. No, I'll tell you, 0 to 1, I think this is very cliche, but everybody knows it, and then I'll tell you a hack to it. Okay? The cliche is start creating content. Everyone in 0 to 1 stage, just create content, create so much content that you can. I think the most important function of your business is getting the right customers in the initial stage. And अगर तुम product based business नहीं हो तो तुम्हें first product, I'm assuming कि product बन गया है, okay? तो product बनने के बाद the first and the most important thing is कि तुम्हें customers चाहिए, and that customers can come from internet very easily. So 0 to 1, everyone who's here, create content. And don't tell me कि मैं B2B में हूँ, मैं B2C में हूँ, मैं software बेचता हूँ, मैं construction बेचता हूँ. सब में सबका स्कोप है और सब ने पैसे कमाए कंटेंट बना के. कोई भी नीश ले लो. अब फ्रेंड वो स्विमिंग पूल बनाता है, स्विमिंग पूल बैंगलोर में, और उसने 60 करोड़ का बिजनेस बनाया. सिर्फ स्विमिंग पूल दिखाता है महंगे करोगे, और सारे घरों में इंडिया में स्विमिंग पूल ही लगा रहा है. लाइक आई कुड हैव नेवर इमेजिन कि स्विमिंग पूल वाले. बट व्हेन ही टॉक्स, सो व्हाट हैपेंस, मे बी जो एक रियल एस्टेट बिल्डर है, उसने पहले एक बिल्डिंग बनाई होगी जिधर उसको वाटर प्रूफिंग की प्रॉब्लम आई होगी. उसने उसकी रील देखी जहाँ पे वाटर प्रूफिंग की अच्छी हद कर उससे कनेक्ट हुआ, उसने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि मेरी 4 बिल्डिंग में तू बना देना. लाइक एनीथिंग कैन हैपन. कॉन्टेंट इज दैट पावरफुल. सो 0 to 1, content 100%. Now the hack to create content and go really viral is, I'll give you 2. First is make any content that is savable and shareable.
जो दूसरे लोगों को शेयर करें. कोई कंटेंट लाइक्स और कमेंट्स के लिए मत बनाओ. कंटेंट सिर्फ इसलिए बनाओ कि दूसरे को भेजेगा क्यों. किसी भी नीश में वो ऐसे चीज़ बनाओ, लाइक you should treat, I'll tell you the biggest hack, you should think that your audience should send this to other people by actually insulting them and be like, अबे तू कितना dumb है, तेरे को ये नहीं पता, right? And this is what smart people do. We all have that smart uncle on WhatsApp group जो रोज सुबह बेचते हैं बेटा बादाम खाने से ही होता है, right? और वो इसलिए बेचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो बहुत स्मार्ट हैं, बट क्योंकि किसी ने कंटेंट बनाया उनके लिए जो उन्हें स्मार्ट लगा रहा है, इसलिए उनका कंटेंट शेयर हो रहा है. दिस इज व्हाट एवरीबडी शुड थिंक अबाउट. मेरे कस्टमर को मैं कैसे स्मार्ट फील कराऊं ताकि वो दूसरे लोगों को मेरा कंटेंट शेयर करे. एंड दैट इज द बिगेस्ट हैक. यू विल गो 0 to 1, 0 to 100 के very quickly. Just make sure that you're making sure that your customer is feeling smart. बहुत लोग करते हैं कि स्टार्टिंग में अपने हैक्स नहीं बताते, अपनी चीज़ें नहीं बताते, स्मार्ट चीज़ें नहीं बताते. उनको लगता है कि यार मेरे कॉम्पिटिटर देख लेंगे, मेरे कस्टमर को ये पता चल गया तो फिर थोड़ी वो मेरे पास आएगा, मैं कैसे अपना सीक्रेट सॉस बता दूँ तो भी आएगा कस्टमर. सारे कस्टमर्स लेज़ी हैं, और जो लेज़ी नहीं है वो तुम्हें कस्टमर चाहिए नहीं. ट्रस्ट मी. So all customers are lazy, they'll still come to you, they'll still ask you to do the stuff even after knowing all the hacks. So you should just make them feel that they're smart and tell them everything that you have. That's it. Okay, last question we'll take from this side. Sorry. Last question. Can we give it this thing? Wow, 3 people stood up. अब तुम दोनों रॉक पेपर सीधा कर लो यार. You guys. I'll sign. Choose. We can do one each. Fine. Like let's just do 2. Go. Okay. Last 2. I'll try to keep answers short. By the time you can come, I'll sign. Hi Raj. So I'm CA Gitika Bajaj and I run an outsourcing firm. And the minute you hear that it's an outsourcing firm or KPO, you feel like, oh, it's going to be boring. And I love speaking, so I started making content related to that. But now I think that, okay, CAs, generally don't make much content like related to outsourcing. So I feel like I could start a podcast. And but the bottleneck that I'm facing is that how do I reach out, So how did you first get your first podcast host? Okay. So everyone who wants to do a podcast or maybe invite people in their events, can you guys sit? I'll answer. I will be here. मैं सब sign करूँगा. Don't worry. So जिसको भी start करना है podcast. How many people want to build podcast? By the way, I just want to see. Wow. जस्सी नोट बना ले, सब कंप्यूटर बनने वाले हैं. अब मैं वो गलत टिप देनी पड़ेगी. I'm kidding. You can take my whole blueprint, you can take my people, you can take my whole company and try to build your podcast and you will be able to build it. Don't worry. I'm very open. Very open like that. So, my first guest was my, I think, 170th or 180th email that somebody said yes. So, I'll tell you, okay, not a lot of people know this. जब मैंने स्टार्ट किया था पॉडकास्ट, मैंने ना सब लोगों को भेजा, एंटरप्रेन्योर्स से लेके फेमस कंटेंट क्रिएटर्स से लेके सबको. सो किसी ने रिप्लाई नहीं किया. सो आई विल टेल यू द नंबर ऑफ पीपल हु आर टुडे माय फ्रेंड्स. वी आर लाइक वेरी क्लोज बडीज एंड वी हैंग आउट टुगेदर. एंड उन्होंने किसी ने रिप्लाई नहीं किया था. 6 महीने फॉलोअप तक उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया. बैक टू बैक मैंने 10-15 ईमेल भेजे. पारुल गुलाटी. पारुल ended up becoming one of my first guests in the initial. मतलब उसको बहुत फॉलो अप किया था उसने, फिर हाँ बोल दिया था पारुल ने. I think 10th or 11th podcast was with Parul. So she was there. रणवीर अलाबादिया didn't reply for आज तक रिप्लाई नहीं किया उसने इस ईमेल का. व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देगा लेकिन ईमेल पे नहीं करेगा. ठीक है. Then Dr. रितेश मलिक, for the longest time he didn't reply. Then Kunal Shah didn't reply. Kamath brothers didn't reply. Nikhil is one of my closest big brother type now. Like he's a person who I go to advice for now. He didn't reply to me at that time. Then Masoom Minawala, no reply. So all these people, like all you hear names today, probably they have good friends or someone who are
collaborators or we belong to the same industry. None of them replied. None of them. मेरा first podcast था with Gaurav Raturi. I still remember his name. वो ना दिल्ली में walls paint करता था और वो वॉल्स पेंट कर करके उसने 70-80 वॉल पेंट करी थी और वॉल पेंट आर्टिस्ट बनना चाहता था और उसको कमर्शलाइज करना चाहता था वो। उसका कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं था बट ही सेड यस एंड मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था कि यार वॉल पेंट करके कैसे बिजनेस बनता है, क्योंकि मैं उस टाइम पे मेरे बिजनेस के लिए वॉल पेंटिंग बहुत कराता था. सो दैट वाज माय फर्स्ट गेस. माय सेकंड गेस वाज अ पोएट याया बूटवाला. तो वो मेरे शहर आया था एक पोम उसके स्टैंड अप या उसके इवेंट के लिए, उसके शो के लिए. वहाँ पर मैंने उसको ऑफ गार्ड चेस कर लिया, उसके मैनेजर से बात करी, मैंने प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एंड देन दैट्स हाउ वी वर एबल टू डू इट. मेरा थर्ड था पॉडकास्ट जो मैंने डिलीट कर दिया, अभी आज तक तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं. वो श्वेताब गांगवार, एक बहुत ही राउडी अल्फा मेल टाइप कंटेंट बनाता था. वो श्वेताब मैन सूत्रा करके उसका नाम था चैनल का, उसके साथ बनाया था. वो इतना अब्यूजिव कंटेंट था, इतना ज़्यादा बढ़िया था, बट मैं उस टाइम पे यंग था तो मैंने वो भी डाल दिया था कि यार कैसे भी व्यूज़ आ जाएं बस. And then I deleted it because that was not vibing with my authority. So I have done all of this. Now, what I've learned after reaching out to so many people, that is more important. Even today, a lot of people don't reply, by the way. Like, I've been chasing Gautam Adani since ages. नहीं reply करता, right? They don't reply today, but we keep chasing. साल भर से कर रहे हैं. One day he'll come. We keep chasing Ambanis. They don't reply. We're trying to reach out to Ratan Tata. They are not replying. I reached out to Barack Obama. नहीं reply किया उसने. So you have to keep chasing that. You just have to keep doing it, key, right? yeah. You just have to keep doing it, right? In fact, recently, so I reached out to Sundar Pichai, okay, Google CEO, and Varun, one of my very close friends, he did a podcast with him. Right? तो मैंने तो अगला email डाला यार, आपने वरुण के साथ कर लिया, मेरे साथ भी कर लो. So I keep doing it even today, every day, and a lot of people don't reply. One type of email which has gotten me maximum replies is when I start my email with what I'm going to do to them. Most of the emails where I have received or when I have sent, people don't reply when I say, hey, I am Raj Chamani, I run this podcast and I can do this. It'll be my honor if you accept my humble request to be on my podcast, right? That never works. To me, it has never worked. I throw up एकदम मैं जाके chase करता हूँ किसी guest को. For example, his first podcast or first interview after his whole fiasco of Shark Tank was with us. He didn't reply to Forbes, he didn't reply to CNN, he didn't reply to Economic Times, he didn't reply to Money Control, but he replied to us because उन सब ने यही भेजा था उसको कि प्लीज़ यार हमें अपॉर्चुनिटी दे दो, आपसे बात करेंगे, ये करेंगे. ही सेंस दैट कि सबको कंट्रोवर्सी चाहिए. ही सेंस दैट ओके ही इज़ गोना हेल्प मी. द मोमेंट यू कैन मेक योर गेस्ट फील लाइक आई एम गोना हेल्प यू, आई एम डूइंग अ फेवर बाय गेटिंग यू ऑन, दे आर गोना, नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल यू आर, दे विल कम ऑन योर. दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड. Hi Raj, I have a question. Wow. You shared about 3 of your success stories. Can you share about one of your failure startups and what did you do after that? Lovely. I'll tell you the most common one which I think everybody did. मैंने भी सैनिटाइजर बनाया. हाँ मैंने सैनिटाइजर बनाया और सैनिटाइजर बेचा भी और वो बहुत बड़ा फेलियर था, फ्लॉप हुआ. मैंने सैनिटाइजर डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज बनाया, उसमें बहुत पैसे कमा लिए, बट उससे पहले मैंने सैनिटाइजर बनाया था तो वहाँ पे फेल हुआ. द थिंग विज सब लोग बना रहे थे तो मैंने बनाया, सो आई फॉलोड अ ट्रेंड. उसमें ना मेरी परचेज कैपेसिटी थी, ना सेलिंग कैपेसिटी थी, ना मुझे फॉर्मुलेशन आता था. वहाँ पे आई फेल्ड. मुझे खुद को स्टैंड आउट करते नहीं आता, मेरे सैनिटाइजर में कुछ यूनिक नहीं था, देयर आई फेल्ड. उसके बाद इतने लोग मार्केट में आ गए थे और मेरे पास ना फार्मास्यूटिकल कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूशन था, तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन भी ना बना पाया, देयर आई फेल्ड. एंड देन ना मैं कॉन्टेंट बना पाया यूनिक तरीके से उसको बेचने के लिए, देयर आई फेल्ड. एंड देन गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी कि 50 रुपये से ऊपर नहीं बेच सकते, तो मैं उसको एस्पिरेशनल भी नहीं बना पाया, देयर आई फेल्ड अगेन. सो फेलियर वाज बिकॉज आई ट्राइड टू चेस समथिंग वेयर आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट, एंड दैट्स वेयर आई फेल. एंड दैट्स आई थिंक द कॉमन स्टोरी विद एवरीवन इन एवरी फेलियर. दैट आई वुड से वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स दैट आई डिड. Amazing. Hi Raj. Lovely. So Lovely.
On the behalf of the Ivy Grove team and 21 by 72, so we loved having you, absolutely loved. I think we all can vouch for that. Let's give him a big round of applause. Thank you. Thank you. We just want to know your experience in Surat. I hope you loved being here as much as we loved having you. It was lovely. मैं सूरत शायद 4th या 5th टाइम आ रहा हूँ. मैं पहले इधर बिजनेस करता था सूरत से. केमिकल्स खरीदने के लिए मैं ट्रेन से आता था सूरत और वापस चले आता था. सुबह आता था और रात को वापस चले आता था. दैट वाज माय सूरत एक्सपीरियंस. यहाँ पे बहुत सारी डिटर्जेंट केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं जिसके साथ जिधर मैं आता था पापा के साथ केमिकल खरीदने के लिए. एंड उसके बाद मैं अब आ रहा हूँ वेयर नाउ आई फील लाइक कि यार मुझे मतलब लोग रिसीव करने आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है. सो इट्स अ वेरी सरियल फीलिंग दैट द सिटी वेर आई स्टार्टेड डूइंग ट्रेड फ्रॉम, the city where I was really underconfident, is a city which is welcoming me. So I loved it. Thank you so much for giving me this honor. And I loved you guys' hospitality. You guys are really, really kind. And let me tell you one thing, guys. This guy, both of them, ये बताए जब first time room में आते ना, how do people enter in the room? I'll tell you. Hi Raj, I'm Rachit, I'm Prateek, right? These guys entered like this. Okay? Yo Raj, yaar, so good to see you, man. It was so good. Dude, we are so excited to hear. I was like, and man, मैं सुबह 5 बजे से उठा हुआ हूँ. मैं कल रात को 2 घंटे सोया हूँ. और मैं उठ के आया, मेरे को, and to act there, I was like, yeah man, super excited, let's go do this. So, the kind of energy these guys give is so contagious. Like, thank you so much for doing this. Thank you guys. It was Amazing, pleasure being here. amazing. Thank you so much.